مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز کہ تم جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں علیشہ انصاری کا لکھا ہوا خوبصورت ناول عشق متشکرم۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول، یہ تحریر اچھی لگ رہی ہے تو کائنڈلی میرے نئے ویورز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، ناول کو لائک کر دیا کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ میرے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اچھی اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں عشق متشکرم کا نیکسٹ پارٹ۔ عزیز نے اپنے کسی قریبی بندے کے ہاتھ رومائزہ کا دیا خط احتشام شنواری تک 5 دن بعد پہنچا دیا تھا۔ اپنے کاموں کے درمیان اس خط کو پہنچانے کا کام ذہن سے نکل گیا تھا۔ یہ خط والا معاملہ میران کے علم میں نہیں تھا۔ رومائزہ نے میران سے چھپ کے اپنے کمرے کی کھڑکی سے عزیز کو یہ خط دیا تھا۔ اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا رات ہی وہ ان سے فون پہ بات کر سکے گی۔ عزیز بھائی، یہ میرے بابا کو دے دیجئے گا پلیز، اپنے چھوٹے سائیں کو مت ہی بتائیے گا، پتہ نہیں وہ کیسا ریئیکٹ کرے، کہیں خط دینے سے انکار نہ کر دے، اور آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں لکھا جو میران کے خلاف ہو۔ اس نے نہایت سادگی سے گزارش کی تھی۔ عزیز نے سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا اور خط لے لیا۔ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں پہنچا دوں گا۔ اسے مطمئن کر کے وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا۔ شنواری صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے اس خط کو پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جان، اکثر شنواری یا احتشام صاحب کہا کرتی تھی۔ بابا جان وہ صرف کوئی بات منوانے، مکھن لگانے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلتا سنتے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، پر آپ سے خفا ہوں۔ میں روز انتظار کرتی ہوں کہ کب آپ قرض اتاریں اور میں یہاں سے نکل سکوں۔ آپ سب مجھے بہت یاد آتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا مزید کیا لکھوں۔ سامنے ہوتے تو ڈھیر ساری باتیں کر لیتی، آپ کو گلے لگا لیتی، کبھی سوچا نہیں تھا خط لکھنے کی نوبت آئے گی۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، مجھے کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، پر یہ قید بہت بھاری لگ رہی ہے۔ اللہ آپ کے لیے راستے کھولے، آمین۔ کچھ سطر چھوڑ کے نام ذیل تھا، آپ کی رومائزہ۔ جلدی میں وہ جتنا لکھ سکی تھی لکھ کر عزیز کو دے دیا تھا۔ سانسوں کی رفتار پہ قابو پاتے انہوں نے پرچہ طے کر لیا۔ ہلکی بڑی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ اس میں وہی باتیں تھیں جو تقریباً 6 دن پہلے وہ فون پہ کر چکے تھے، پر ان لفظوں میں چھپا قرب انہیں دل میں چبھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی کن پٹی سہلائی، ایک نگاہ کمرے میں گھمائی۔ بالآخر ان کے اپارٹمنٹ کا سودا ہونے جا رہا تھا۔ دائم علی کے منتظر بیٹھے تھے اور فیکٹری بھی ایک زمیندار آدمی ان کی منہ مانگی رقم میں خریدنے کو تیار تھا۔ ان دونوں جگہ سے رقم کی وصولی ہوتے ہی وہ قرض اتارنے والے تھے۔ شنواری صاحب میران جا آئے ہیں، میں نے اندر بٹھا لیا ہے، آپ کے منتظر ہیں وہ۔ نعمت بھی کھلے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی بتا کے مڑ گئی۔ شنواری صاحب نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، اس کے آنے کی انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ آخر اب کیا کہنے لینے آیا تھا؟ وہ دروازے کے باہر سن گلاسز لگائے کھڑا تھا۔ این گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے عزیز کو کہا تھا شنواری کے گھر لے چلے، جبکہ وہ گھر سے نکلا تھا کسی سیاسی عہدیدار سے ملنے کے لیے۔ خاتون نے دروازہ کھولا، میران نے آنکھوں سے گلاسز ہٹائے۔ شنواری صاحب سے ملنا ہے، عزیز نے تھوڑا جھک کے بتایا۔ نعمت بھی ان دونوں جوانوں کو چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر سر ہلا کے دروازے پہ پورا کھولا اور انہیں اندر آنے دیا۔ آپ بیٹھے، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ میران گلاسز اس کی ڈنڈی سے پکڑ کے گھماتا پورے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے اندر آیا تھا۔ ان خاتون کی آواز پہ وہ چونک کے سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ عزیز کا کھچاؤ بھی وہ نوٹ کر چکا تھا۔ اس نے اس معاملے میں آنکھیں بند کر لی تھی، کسی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ شنواری صاحب آئے تو وہ کھڑا ہوا، ان سے مصافحہ کیا۔ پچھلی ملاقات کے برعکس آج وہ کافی پرسکون تھا۔ احتشام نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، وہ اس کی آمد سمجھنے سے قاصر تھے۔ میران نے ان کے چہرے پہ رقم سوالات دیکھ کر اپنی بات کی شروعات کر دی۔ گفتگو کی طویل جنگ چھڑ گئی تھی۔ عزیز کو بھی معلوم نہیں تھا وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے، پر جوں جوں میران اپنی بات مکمل کرتا گیا اس کی آنکھیں کھل گئی، لب بھینچے وہ سن رہا تھا۔ شنواری صاحب کے بھی اس نے برہم کبھی نرم پڑتے تاثر دیکھے تھے، اور بلا آخر میران اپنی بات منوا کر وہاں سے کھڑا ہوا تھا۔
احتشام صاحب کے ذہن میں جنگ چھڑی تھی، بری طرح الجھ گئے تھے۔ میران نے ان کے آگے جو معاہدہ رکھا تھا، پتہ نہیں رمائزہ اس پہ راضی ہوتی کہ نہیں، پر میران کے زور دینے پہ انہوں نے میران کے مطلب کی بات کر دی تھی۔ وہ مان گئے تھے، جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ مکمل ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے میران نے ان کے فیصلے پہ راضی کیا تھا۔ اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر رہیں اور آرام سے یہاں رہیں، بہت جلد آپ کو اس سے ملوا دوں گا۔ اس کے اٹھنے کے بعد احتشام شنواری بھی کھڑے ہو گئے۔ میران نے گلاسز واپس آنکھوں پہ لگا لیے اور پلٹ گیا۔ احتشام صاحب کے پاس الفاظ ادا کرنے کے لیے نہیں بچے تھے۔ انہوں نے دروازے تک اسے چھوڑا اور جب پلٹے تو ایک آنسو کا قطرہ آنکھ سے پھسل کے داڑھی میں جذب ہو گیا۔ اب تو آپ مجھے کچھ بتانا پسند ہی نہیں کرتے عزیز کی خفت پہ میران صاحب زیر لب مسکرایا۔ وہ گھوم کے ہیلکس کا دروازہ کھول کے بیٹھا۔ پھر بھی تم کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے، سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتے ہو۔ کہہ دو تم اس بات سے بھی اعتراض ہے جو میں نے شنواری سے کی۔ وہ کھلا طنز کر گیا۔ عزیز کا سر جھک گیا۔ اس نے ایگنیشن میں چابی گھمائی اور سوال کیا، بنگلے واپس؟ نہیں، فارم ہاؤس۔ موسم میں کم ٹھنڈ کے باعث آج اس نے چادر وغیرہ نہیں اوڑھ رکھی تھی، سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ عزیز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 5-6 دن پہلے ہی تو گئے تھے، وہ بے ساختہ بولا۔ اب تم دن بھی گنو گے؟ واہ عزیز میاں، میران اش کر اٹھا۔ عزیز جھیم گیا۔ بات تو یہ بھی تھی، یہ 5 دن بڑی تیزی سے گزر گئے تھے، پھر بھی ملاقات یار کی طلب تو ہوتی ہی تھی۔ شاید یہ آخری چکر ہو۔ میں چاہتا ہوں وہ جب آزاد ہو تو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے بخوشی راضی ہو جائے۔ اس کے دل میں میری محبت کے نغمے گونجنے لگے۔ موسم پگھل رہا ہے، اس موسم کو سمیٹنا میرا کام ہے۔ اب مزید میں انتظار برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ باہر سڑک پہ غیر مری نقطے پہ نظر جمائے کھویا کھویا سا کہہ رہا تھا۔ بعض اوقات عزیز کو اس کے جنون کو دیکھ کر خوف آتا تھا، اور وہ جو کرتا پھر رہا تھا اب تو اس کی بھلائی کی دعائیں مانگنا بڑھا دی تھی۔ عزیز نے گاڑی کے ایگنیشن میں پھر چابی گھمائی اور گاڑی فراٹے بھرتی نکل گئی، جس کے جانے کے کچھ دیر بعد دائم وہاں آیا تھا۔ ارے یار رمائزہ، سب خراب کر دیا تم نے۔ وہ لاؤنج میں پینٹنگ بورڈ کو سٹینڈ پہ فٹ کر کے سٹول پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 برشز الگ الگ رنگوں سے رنگے ہوئے تھے۔ اس نے لال کی جگہ ہرے رنگ میں لت پت برش بے دہانی میں گلاب کی آؤٹ لائن پہ پھیر دیا تھا۔ بے ساختہ اس نے سر پہ ہاتھ مارا۔ آج کل اس کا دھیان ہی دوسری دنیا میں ہوتا تھا۔ کام کچھ ہوتا تھا، کار کچھ اور رہی تھی۔ حلیمہ بھی اگر اسے کچھ کہتی، آدھی بات سمجھ آتی، آدھی پھر ان کے ہاتھ ہلانے پہ واپس پوچھتی۔ رمائزہ، جس کو سوچ رہی ہو دفع کرو اسے، محبت کچھ نہیں ہوتی، سب وقتی لگاؤ ہوتا ہے۔ برش کو کان پہ پھنسائے وہ چکر کاٹنے لگی۔ اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، ساری امیدیں تجھ سے ہیں میرے مالک، خیر کر دے میرے لیے۔ بے بسی سے وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ باہر گاڑی کی آواز بھی وہ اپنی جھنجھلاہٹ میں سن نہ سکی۔ تیز تیز قدم لے رہی تھی کہ بے ساختہ کسی سے تصادم ہوتے بچا۔ اس نے سر اٹھایا، وہم سمجھ کے سر جھٹکا، پر جب وہ حقیقت میں جگہ بناتا صوفوں کی طرف بڑھا تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ صرف سوچا تھا اور وہ حاضر ہو گیا تھا؟ ابھی تو وہ آیا تھا، ہاں ابھی 6 دن پہلے، پر دل میں خوشی کی کلی پھوٹنی تھی۔ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ اپنے ہاتھ کے جلوے۔ صوفے کی ٹیبل کی طرف سے مڑ کے وہ سٹینڈ کے پاس آیا، خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا، اور جب تھوڑی سہلاتے پینٹنگ شیٹ دیکھی وہ ہنسا تھا۔ اس کا کہکا پورے لاؤنج میں گونجا۔ کیا ہے؟ تم بتاؤ یہ کیا ہے؟ گلاب لال کی جگہ ہرا کب سے ہونے لگا؟ وہ ہنستے ہوئے ہی اس کے پاس واپس آیا۔ رمائزہ ساکت کھڑی اس کی نظروں میں دیکھ رہی تھی۔ غلطی سے ہو گیا، آرام سے کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑنے لگی۔ میران اس کے آگے آیا۔ وہ ذہنی کشمکش کی شکار صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آج تو لگ رہا ہے سورج مغرب سے نکلا ہے۔ اس کے تاثرات پہ چوٹ کرتا وہ بولا۔ وہ نہیں چاہتی بے دہانی میں کچھ الٹا سیدھا اسے بول دے، پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا۔ چلو تم نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، پر تمہارے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ اس نے جینز پہ ہاتھ ڈالے۔ آج وہ فارمل ڈریسنگ میں تھا، نہ وہ کرتا شلوار نہ ہی چادر تھی۔ ہاتھ میں سن گلاسز تھے جو اس نے آتے ہی ٹیبل پہ رکھے تھے۔ اس کے بدلے حلیے کا جائزہ لینے سے فرصت ملی تو رمائزہ نے اس کی بات پہ غور کیا۔ کیا خوشخبری؟ وہی جو میں چاہتی ہوں، آزادی۔ ویران آنکھوں میں چمک دار آئی۔ وہ مبہم سا مسکرانے لگا۔ جو میں چاہتا ہوں، بلا وجہ تمہیں یہاں رکھنے کا مقصد نہیں تھا۔ جس بنا پہ تمہیں روکا تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تمہارے بابا بھی قرض اتارنے والے ہیں۔ آہا،
फिर मैं कब घर जाऊंगी? खुशी से वो चहकी। मूड में एकदम बेहतरी आई थी। सिर्फ 2 हफ्ते। इन्हीं के दरमियान लब मिला के उसकी आंखों में देखते यकीन से बोला। रूमा ने नजरें नहीं फेरी। हलीमा भी नहीं है क्या? उसने कमरों की तरफ नजर घुमाई। आज पहली बार मुझे अकेला छोड़ के बाहर गई हैं, किसी रिश्तेदार की अयादत के लिए। ओ अच्छा। उसने गर्दन हिलाई। ज्यादा बनो मत, तुमको जैसे पता नहीं होगा, ऐसे ही तुम उनके जाते ही आ गए। उसे घूर के तई चढ़ा के उसने जताया। आज हो सकता है ये आखिरी मुलाकात हो फार्म हाउस की। मैं चाहता हूँ कोई बहस ना हो। 2-3 घंटे के लिए आया हूँ। क्या हम नॉर्मल बात नहीं कर सकते? आखिर को दुश्मन थोड़ी हैं और मुस्तकबिल में एक मजबूत रिश्ते में बंध जाएंगे। वो पलक झपका कर एक हाथ बाजू पे लपेटे, दूसरा बात की निस्बत हिलाकर बोला। रुमा ने गहरी सांस ली और गुंग हो के उसे देखा। मुस्तकबिल में क्या होता वो सोचना नहीं चाहती थी। उसको बस अपने घर जाना था। आओ लॉन में चलते हैं। रुमाइजा ने उसे देखा। वो बाहर सामने वाले हिस्से की बात कर रहा था जहाँ कदम रखने की रुमाइजा की ख्वाहिश थी। ठीक है। सर घुमाती वो उसके पीछे चल दी। बाहर किसी गार्ड का नामो निशान नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतर के नीचे आई। पैरों से चप्पल उतार के सबज घास पे उसने कदम रख दिए। मेहरान ने भी अपने जूते उतार दिए थे। घास की ठंडक दिल में उतर रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी थी। रुमाइजा ने हर क्यारी के पास के पौधों और दरख्तों को देखा। फूलों को पूरों से छू के खुशबू खुद में उतारी। खुली जगह में आसमान की जानिब सर उठा के अल्लाह का शुक्र अदा किया। वापस मेहरान के पास आ गई जो सीढ़ियों के पास पिलर से टेक लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। उसे पुरसुकून देखकर उसके लबों में जुम्बश हुई थी। फिजा में कितना सुकून होता है ना। बस एक हमारे दिल में तूफान हर वक्त जोरों शोर से उठा रहता है। कभी एक ख्वाहिश के पीछे, उसके हसूल के बाद दूसरी चीज की ख्वाहिश के पीछे। सीढ़ियों के दोनों इतराफ आखिरी सीढ़ी पे पिलर खड़े थे और ऊपर पिलर के साथ छत बनी थी। वो इसी छपड़े के नीचे दूसरे पिलर से टेक लगाकर बैठ गई। मेहरान खड़ा था। उसकी बात सुन के नीचे बैठ गया। हल्की हल्की हवा इन दोनों के सर के बालों को उड़ा रही थी। मेहरान ने आज देखा था उसके बाल कंधे से थोड़ा नीचे आते थे, जबकि जामिया में जब देखा था तब उसके लंबे बाल थे। क्या उसने उस दौरान बाल छोटे किए थे या वो हेयर एक्सटेंशन यूज करती हो? वो थोड़े फासले पे ही बैठी थी। सफेद कमीज शलवार पहनी थी। बाल खुले थे। दुपट्टा भी सफेद ही था जिसके गिर्द सुर्ख पीको हुई थी। धड़कनों में इर्ताश पैदा हुआ। मेहरान ने नजरें हटा के अपने हाथों की जानिब मरकूज कर ली। फिर धीमे से बेखुदी में हंसा। मुझे समझ नहीं आता कौन सा रंग तुम पे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हर रंग में जचती हो। नादानिस्ता तौर पे दिल की बात जुबान पे आ ही गई। वो मुस्कुरा के उसे देखने लगी। आज आजादी का फरमान सुन के बहुत खुश थी। मेहरान को उसके बदले रवैये पे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मेरे बाबा भी यही कहते हैं, पर सफेद रंग की बात अलग है। सामने क्यारियों में देखते अपनी हथेली मसलती रवानी में कहा। मेहरान मुत्तफिक था। मैं जब छोटी थी मेरी मम्मी ने सफेद रंग की कई फेरी फ्रॉक्स बनाई थी और मैं इतनी झल्ली थी खुद को परी ही समझती थी। और फिर जब हम बाहर मुल्क चले गए, वहां से आई तो उनका ब्रिटिश एक्सेंट सीखाई थी। जब बात करती थी तो मम्मी मेरी इंग्लिश की रवानी सुनकर बहुत खुश होती थी और मुझे खुद से लगा लेती थी। उस वक्त मुझे लगता था एक छोटी सी परी को उसकी माँ ने अपनी आगोश में छुपा लिया है। माजी में खोते हुए वो सफेद रंग से ना जाने किधर निकल गई थी। मेहरान को एहसास हुआ था वो अपनी मम्मी को बहुत याद करती है। आज तो उसने जिक्र भी कर दिया था। उसकी तवज्जो रुमाइजा की जानिब थी। लड़कियां अपने घर में परियां ही होती हैं जो एक मुकर्ररा वक्त आने पे वहां से उड़ जाती हैं। परियां नाजुक होती हैं, पर अगर वो चाहें तो अपनी ताकत का इस्तेमाल बखूबी कर सकती हैं। मैं अपनी मम्मी की बात कर रही थी, तुम क्या बीच में ला रहे हो? उसे टोक कर खामोश रहने का कहा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। पहले तुम अपना पास्ट बताओ, फिर मैं बताऊंगा। दोनों ही एक दूसरे को जानने के लिए बेताब थे, खासकर मेहरान। वो तो चाहता रुमाइजा और उसके दरमियान जो दीवारें खड़ी हैं बेएतबारी की उन्हें खत्म कर दे। वो भी अपना दिल हल्का करना चाहती थी। कोई था जो सिर्फ उसकी सुनता था, तो फिर कैसे खामोश रह लेती? मैं, बाबा और मम्मी, हमारी एक मुकम्मल फैमिली थी। हम लाहौर में नहीं रहते थे। हमारी रहाइश इस्लामाबाद में थी।
मम्मी कश्मीर से थी। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी, मुझसे भी ज्यादा। मम्मी बाबा ने मेरे बेहद लाड उठाए हैं। काफी अरसा हम इस्लामाबाद में रहे। जब ही मुझे उससे बेहद उनसियत है और फिर कारोबार के लिए बाबा लाहौर शिफ्ट हो गए। उनका कोई और भाई बहन नहीं है। मेरान ने मुदाखलत की। वो सामने देख रही थी। नफी में सर हिलाया, फिर हाँ में। मेरान समझा नहीं। हैं तो सही, पर वो बाहर हैं और काफी अरसे से ला ताल्लुकी है। खानदानी मसले, बस हम मिलते नहीं। उसने बात टाली। बाबा ने फैक्ट्री बनाई और उसी वक्त जुल्फकार जा से कर्ज लिया होगा। इस्लामाबाद में वो अच्छी पोस्ट में ही लगे थे। पता नहीं उनको भी क्या समाई, लाहौर चले आए। शायद मम्मी जानती हों उन्होंने कर्ज लिया था, पर मैं तो सबसे नाआशना थी। मैं 12 साल की थी जब मम्मी हमें अकेला छोड़ गई। लाहौर उनको रास ना आया। लहजे में तलखी उबर आई। मेरान ने गहरी सांस भरी। माहौल घुटन का शिकार हुआ था। अब तो उनके बगैर रहने की आदत हो गई है। वो बहुत डरती थी। मैं एक मर्तबा पार्क में खो गई थी। बाबा बताते हैं कि उन्होंने रो रो के बुरा हाल कर लिया था। वो मुझे कभी खुद से दूर नहीं करती थी। सब कहते थे नाज ने रुमाइजा को हथेली का छाला बनाया हुआ है। उन्होंने मुझे सारी मोहब्बत दे डाली थी। उनको जाने की जो जल्दी थी। वो मुस्कुरा रही थी, दर्द छुपा रही थी। वो भी जिंदा होती तो ना जाने कैसे खुद को संभालती, पर अगर वो जिंदा होती तो बाबा को भी जोर देती कि कर्ज उतार दे, वरना हमें खा जाएगा। फिर उनके जाने के बाद कुछ अरसा मैं ट्रोमा में रही। फिर सोच लिया खुद को इस फेज से बाहर निकालूंगी। मैंने कम उम्री में ही मम्मी के जाने के बाद मार्शल आर्ट्स सीखी थी। बाबा से बेहद जिद करके। वो कहते थे थोड़ी बड़ी हो जाओ। उनके लिए तो मैं हमेशा छोटी ही रही, पर 13-14 साल की लड़की थी। मैं बड़ी उसी दिन हो गई थी जब मैंने खुद को ट्रॉमा से निकाला। बाबा ने मम्मी के जाने के बाद बहुत मोहब्बत दी। हमारा इस्लामाबाद वाला घर बहुत खूबसूरत जगह पे कायम था, पर लाहौर में जो बाबा ने अपार्टमेंट लिया उसकी लोकेशन भी अच्छी थी और वो अंदर से भी बहुत अच्छा फर्निश्ड किया गया था। मुझे हर चीज़ की खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती है। किसी भी चीज़ में खूबसूरती निकाल लेती हूँ। वो घर मेरे लिए जन्नत सा है। बाबा और मेरी कई यादें हैं। मुझे वहाँ ही किसी कमरे में बंद कर देते तो खुशी खुशी रह लेती। उसने हंसते हुए मजाहिया तौर पे कहा। मेरान बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। निगाहों का मरकज सिर्फ वही थी जिसके चेहरे पे ही शादाबी मेरान के दिल में फुआर की तरह बरस रही थी। चलती हवा उसके बालों से छेड़छाड़ कर रही थी। रूमा ने उसकी तरफ चेहरा किया तो नजरें टकराई। उसके दिल में वलवला सा मचा। मेरान की मोहब्बत लुटाती निगाहों में देखना बड़ा मुश्किल काम था। उसने पलकें बिछा ली। मेरान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। रुमाइजा ने सांस बहाल की। उसे देखा जो मजीद सुनने के लिए बेताब देख रहा था। फिर स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनी। अच्छी दोस्तें मिल गई, जिंदगी में मसरूफ हो गई और फिर तुम आ गए और एक बार फिर जिंदगी का भयानक रूप सामने आया और लाहौर मुझे भी रास नहीं आया। अपना हाथ ऊपर करके उसने नाखून देखे और आम अंदाज में कहा। मेरान ने आखिरी बात पे सर झटका। मुस्कुराहट सिमट गई। समझदार लड़की थी। कभी कभी मेरान को उसे साथ जोड़ रहा था, इस पे बेहद अफसोस होता था। काश के पहले ही सब ठीक कर पाता, उसे मजीद दुख मिलने से बचा लेता। पर आजमाइशें भी अल्लाह की जानिब से आती हैं और न जाने वो मजीद कितना आजमाई जाती। उसने अच्छा और बुरा वक्त दोनों ही देखे थे। अब भी वो खुद को संभालती थी। खुददारी बहुत थी। यहाँ रहना उसे सबसे दुश्वार लगता था, पर उसे यहाँ मोहब्बत लुटाने वाली हलीमा भी मिल गई थी जो उसके दिमाग में गलत सोचें उभरने नहीं देती थी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो ये बात वाज़िया कर देती थी। उसे अगवा करके नहीं रखा हुआ, मेहमान है वो यहाँ। और इसी सब में पेंटिंग का शौक चढ़ गया था। वो भी सीख ली, फिर महारत आ गई। अब तुम बताओ, अपनी कहानी में काफी बोल चुकी हूँ, इतनी तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। बड़ी बात है, तुमने सब सुन लिया। सांस लेते वो हल्का सा उसकी तरफ पलटी, जैसे अपनी बात मुकम्मल कर ली हो। मेरान ने उस पर नजरें जमा दी और वो उसका माजी जानने में दिलचस्पी दिखा रही थी। मेरे बारे में जान के क्या करोगे? कुछ खास नहीं है बताने के लिए। तुम्हारी मम्मी का सुन के अफसोस हुआ। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वो कहते हुए आस्तीन फोल्ड करने लगा। रुमाइजा ने आमीन कहकर उसे घूरा। ये गलत बात है, तुमने मेरी पूरी कहानी सुनी, अपना अब बता नहीं रहे।
کہانی سب کی خاص ہوتی ہے۔ اس نے پلر سے سر ٹکا لیا۔ میران کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی۔ وہ اس کی پہنائی انگوٹھی کو تھامنے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس کے بے حد اصرار پہ میران بتانے کو راضی ہو گیا۔ میرے دادا شہوار جا وڈیرے جاگیردار تھے۔ ہم جدی پشتی اچھے دولت مند گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ سرداری بھی ان کو حاصل تھی۔ بہت اچھے انسان تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ موم کا نام گل تھا۔ جب میں 3 سال کا تھا وہ اپنی بیماری کی زد میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ذوالفقار صاحب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ سب نے کافی کہا پر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے میرے باپ پہ مان ہے۔ تم تو بہت چھوٹے تھے۔ وہ گھٹنوں پہ جھکی افسوس سے بولی۔ چہرے پہ دکھ بھی نمایاں تھا اور ہاتھ کے نیچے تھوڑی ٹکا دی۔ میران کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ ہاں، میری موم کے ساتھ اتنی یادیں نہیں ہیں۔ عمر ہی اتنی کم تھی، زیادہ کچھ یاد ہی نہیں۔ بابا نے پہلے ہی سیاست میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ وہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تمہیں تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی؟ اگر ایک بندہ بھی گھر کا کام ہو جائے تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اور ماں کی کمی تو بہت محسوس ہوتی ہے۔ اس نے ہنوز اس کی آنکھوں میں دیکھے سوال کیا۔ میران نے شرٹ کا بٹن کھول کر کالر کو ڈھیلا کیا۔ وہ اپنی بری یادیں بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ ماں کی یاد پہ بند کمرے میں کس قدر روتا تھا۔ میرے باپ نے میرے آگے دنیا جہاں کی نعمتیں لا کر رکھ دی تھی کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو، پر ماں کی کمی تھی جو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن وقت سب کا استاد ہے، سب بھلا دیتا ہے۔ انسانی فطرت ہے، کسی بھی سوچ کو لمبے عرصے تک آن نہیں کر سکتا۔ خیالات بدلتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو آپ کے برے وقت سے باہر نکال لے آتا ہے، اور اگر کوئی نہ ہو تو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ میں ذوالفقار جا کا بیٹا اور شہوار جا کا پوتا تھا۔ ہاں، مغرور تو تم بچپن سے ہی ہوگے۔ آنکھیں گھما کر جب وہ بولی تو وہ ہنسی پہ قابو نہ پا سکا۔ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا، مرد روتے نہیں۔ اسے دلکشی سا ہنستے دیکھ کر وہ بولی۔ پرکشش مسکراہٹ تھی، سامنے والے پہ اپنا اثر چھوڑ دینے والی۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ وہی تو، شکر تم نے خود کو بچہ ہی سمجھا۔ وہ اپنے حساب پورے کر رہی تھی۔ اے پی جماعت کے لیڈر ذوالفقار صاحب نے بہت جوش و جذبے سے عوام کی خدمت کے لیے یہ جماعت بنائی اور کئی الیکشن لڑے۔ کافی محنت بھی کی، کامیابی بھی ملی، پر جلد ہی شیطان پیروں سے چمٹ گیا اور اب تک چمٹا ہی ہے۔ اس کے آگے اس نے خاموشی برت لی۔ پر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے کبھی کسی قدم پہ تنہا نہیں چھوڑا۔ دادا کے بعد تو وہ مزید قریب ہو گئے تھے۔ ہم باپ بیٹوں کی بہت بنتی تھی۔ بڑا ہوا، پھر میں تعلیم کے لیے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو دادا کے بزنسز کو مزید بڑھایا۔ اپنے دم پہ اپنے لیے بھی کافی کچھ کیا، پر کچھ زندگی میں چھوٹ رہا تھا، مزہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن مزار پہ راشن کی تقسیم کی تھی۔ اس وقت جو مجھے خوشی ملی، مجھے اپنا راستہ دکھائی دیا۔ پھر بابا کے ساتھ سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، پر ان کی سیاست کی دنیا الگ تھی۔ میں شہوار جا کا پوتا، اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے سب غلط لگتا تھا۔ جو کام میرے باپ نے کرنا بھلا دیے، ان کی ذمہ داری میں نے لی اور صوبے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، اور کرتا رہوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے سیڑھی کے فرش پہ ہاتھ جما دیے۔ ہوا کے ساتھ دھول بھی اڑنے لگی تھی۔ رمائزہ کو بیٹھنے میں دشواری ہونا شروع ہوئی، پر اس نے گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل رکھا تھا۔ اور ہاں، پھر ایک لڑکی میری زندگی میں آئی جس نے پہلے میری سوچوں پہ قبضہ کیا، پھر میرے دل پہ۔ مجھے چاروں شانے چت ہی کر دیا۔ مزید یاد آنے پہ وہ سامنے نیلے آسمان پہ بکھرے سفید بالوں کو دیکھتے بولا۔ روما نے سر جھکا لیا۔ بالوں کی کچھ لٹیں کان کے پیچھے سے چہرے پہ گری۔ اس نے انہیں پیچھے کیا۔ میران نے چہرہ اس کی طرف موڑ کے دیکھا۔ میں نے تو چاہا تھا اس کے گھر والوں سے رشتے کی بات کروں گا۔ میں ذوالفقار صاحب سے بھی بات کرنے والا تھا، پر اس سے پہلے ہی ایسے واقعات پیش ہوئے کہ سب بگڑ گیا۔ تمہیں کوئی تکلیف دے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے قریب عجیب سے سحر کا حصار کھینچ کے وہ بولا۔ وہ چپ رہی۔ اگر موم ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ وہ سب ہینڈل کر لیتی۔ بابا تمہارے لیے کچھ بھی غلط نہیں سوچتے۔ وہ باپ کی انا کا سوچ شرمندگی سے گویا ہوا۔ دونوں ہی ایک ہی کشتی کے مسافر تھے، بن ماں کے پلنے والے۔ ایک دوسرے کو دلاسا دینے کے لیے دونوں کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ دونوں نے ہی ماضی ایک دوسرے پہ عیاں کر دیا تھا۔
तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? रुमाइजा को लगा जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल उसने पूछ लिया है। अगली सांस बामुश्किल ली। कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, संजीदगी से कहा। और अगर कोई मोहब्बत करे तुमसे, फिर तुम कहते हो मोहब्बत करते हो? जवाब भी तुमको मालूम होगा। बताओ क्या मिला मुझसे मोहब्बत करके? ख्वारी? मेरी बेरहमी? नहीं, महबूब मोहब्बत की खातिर थोड़ी मेहनत कर ले तो ख्वारी नहीं कहलाती। महबूब के लिए तो सैकड़ों चक्कर बंदा खुशी खुशी लगा लेता है। मैं तो खुश नसीब हूँ जिसको बार बार दीदारे यार नसीब हो जाता है। तुम्हारी बेरहमी का शिकवा नहीं है, तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, पर इतना कहूँगा जो आपके मुश्किल वक्त में साथ हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। काश ये सब झंझटें ना पली होती, मैं सीधा तुम्हें फौरन अपना लेता। तुम आज जा बंगले की मकीन होती और मुझे यकीन है उस वक्त इनकार की तुम्हारे पास कोई वजह भी नहीं होती। मुतासर तो तुम थी मुझसे, मेरान जा से। वो मुस्कुरा के सुन रही थी। आखिरी बात पे सर नफी में हिलाया। जी नहीं, तुम भी अगर मोहब्बत कर लो आगे रास्ता आसान हो जाएगा, पर तुम हो के। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो सुनना चाहता था कि वो भी दिल की बात जुबान पर ले आए। तुम मुझे अच्छे और बुरे दोनों लगते हो, पर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो संभल के नजरें चुरा के बोली। उसकी सोचों का मरकज बन चुका था, पर इन एहसासात को उसने कोई नाम नहीं दिया था। वो डरती थी कहीं वो उसकी सोचें ना पढ़ ले। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना है। तुम्हें लगता है मैं अपने अलावा और किसी का नहीं सोचती। मैं मजबूर हूँ, हालात ही ऐसे हैं। किसी पे यकीन करना मुश्किल है, पर तुम पे यकीन करती हूँ। अगर उस दिन तुम वक्त पे नहीं पहुँचते तो पता नहीं क्या होता। तुमने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया है, अपने बाबा के शर से बचाया। वो उसकी मशकूर थी। उसने आहिस्ता बेहद धीमी आवाज़ से कहा। मेरान का शुक्रिया अदा करने में उसकी अना हमेशा आड़े आती थी, पर आज जब इतना दिल खोल दिया था तो जानने का भी वो हक रखता था। जाने से पहले वो शुक्रिया अदा करना चाहती थी, उसका हर कर्ज उतार देना चाहती थी। मेरान उसकी बात पे बेतासुर ही रहा। कुछ देर खामोशी रही। रुमाइजा जो खांसी का ठुसका बड़ी मुश्किल से रोके बैठी थी, ज्यादा देर रोक ना सकी। उसने बुरी तरह खांसना शुरू कर दिया। तुमको बैठना है तो बैठो, मैं मजीद नहीं बैठ सकती। फंदों के दरमियान बड़ी मुश्किल से उसने कहा और मुंह पर हाथ रख के वापस अंदर भागी। और यूं इतनी तफसीली बात सिर्फ एक फंदे पे खत्म हो गई। मेरान उसके पीछे उठा था। अंदर आया तो उसके चेहरे पे दुपट्टे का निकाब था। मास्क खत्म हो गए थे। सफेद नकाब से गहरी भूरी आंखें झांक रही थी, जिनके किनारों पे मोती जमा थे। चाय पियोगी? तुम बनाओगे? नकाब से झांकती आंखों ने हैरानी से पूछा। उसने हाथ से ही निकाब को रोका हुआ था। मेरान ने सार इस बात में हिलाया और किचन की तरफ बाहर गया। एक बात बताओ, तुमने ये फिलॉसफी कहाँ से सीखी है? कौन सी फिलॉसफी? इश्क माशूकी की। हाथ बुलंद करते वो भूमि चढ़ा के बोली। मेरान साकत नजरों से उसे देखने लगा। माशूकी? फजूल तुम ना ही बोला करो। माशूकी लफ्ज उसे गैर मुहज्जिब लगा था। जब ही वो चिढ़ के बोला, तुम तो बुरा ही मान गए। वो काउंटर के साथ टिक कर खड़ी थी। मेरान ने सॉस पैन में पानी और चीनी पत्ती डाल दी थी। तुमने उस दिन स्पीच बहुत अच्छी की थी। हाँ मुझे पता है, जब ही जीती भी थी। लेक्चर देने का तो वैसे भी बहुत ही शौक है। लंबे लेक्चर्स की तुमको भी जरूरत होती है। जब तक मिलता नहीं तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगती। उसकी चोट करने पे वो समझ गई किस लिए बोल रहा है। वो अनजान बनती थी। कुछ दिनों के लिए इटली जा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास छोड़ दूंगा। इस अरसे के लिए वापस आके निकाह करूंगा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी रजामंदी से पूरे दिल के साथ इस रिश्ते को कबूल करो। हम दोनों की मंजिल निकाह है। उसकी तरफ बढ़ते हुए मेरान ने अपने इरादे बताए। और अगर राजी ना हुई तो जबरदस्ती निकाह करोगे? उसकी आंखों में आंखें डालकर चैलेंजिंग अंदाज में पूछा। अगर यही करना होता तो तुम अभी मेरे निकाह में होती, मेरे पास सारे इख्तियारात मौजूद होते, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी मोहब्बत पे यकीन है। वो पूरे वसूख से उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला था। रुमाइजा करंट खा के पीछे हुई। क्या उसके दिल में लगी आग से वो वाकिफ था? अभी तो वो खुद भी कुछ कबूल नहीं कर पाई थी। तैयार रखना खुद को, सब भुला देना। जामिया की मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ, मुश्किल होगा पर करना होगा। सब तुम्हारे लिए किया गया है। बाखुदा मैं तुम्हारा मुजरिम नहीं हूँ।
खुशी से तुमको इधर नहीं रखा मैंने, और मुझे बेहद खुशी हुई कि तुमने बिना किसी झिझक के मेरे सामने अपना माजी खोल के रख दिया। इस काबिल तो समझती हो मुझे। पलट कर कहता वो चूल्हे की तरफ भाग गया और उसका इशारा समझ गई थी। रूमा उसकी पुश्त देखती रही। वो सोच में पड़ गई थी आगे क्या फैसला करेगी। कब तक वो दिलो दिमाग पे पहरा बैठा सकती थी। अपनी जगह गलत वो भी नहीं, हालात ने उसे भी मजबूर किया था। हर मोहब्बत की मंजिल निकाह नहीं होती। बाज मोहब्बतें दरमियान में ही दिलों में रह जाती हैं, एक किनारा कर लेती हैं। वो दम सादे कदे तलखी से बोली। मेरा ने सोच पैन हिलाकर उसे देखा। बिल्कुल, पर हम उन कुछ में से होंगे जिनकी मंजिल निकाह है, उसने बावर किया। वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। चीनी कितनी? तुम पहले ही डाल चुके हो। आंखें छोटी करके पैन की तरफ इशारा करते कहा तो वो हंस दिया। वो अपनी अंगूठी को मुसलसल उंगली में घुमाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में अंगूठी अब भी थी। मेरान को देखकर खुशी हुई। वैसे मैंने तुम्हें ऐसे ही अंगूठी पहना दी। हाँ तो जबरदस्ती पहनानी है तुमने? तो ये कि लड़कियां चाहती हैं कोई उनको अच्छे से प्रपोज करे। अब वो यकीनन उसे जिद कर रहा था। पता है मेरे क्लास फेलो ने भी ऐसा ही कुछ किया था, बल्कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। और फिर पता है मैंने क्या किया? मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि मुझे बार बार परेशान करता था। सोच लो तुम भी, उस शेरनी की धमकी से वो डरने ही कहाँ वाला था। काम तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे पसंद है। वो मसरूफ सा बोला, कबर्ड से कप निकाल के स्लेब पे रखे। उसने गर्दन मोड़ के देखा तो वो उसकी बात पे खिलखिलाकर हंस रही थी। पहली बार उसे इतना खुश देखा था। सर झटक के वो चाय निकालने लगा। होंठों की तराश पे मुस्कुराहट जमा हो गई। रुमा ने हंसते हुए उसकी पुश्त के चौड़े शाने देखे। किचन के माहौल की ठंडक में उसकी खिलखिलाहट ने जैसे इजाफा ही कर दिया था। कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले, कोई तस्बीह दम विर्द बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। चाय का कप उसकी जानिब बढ़ाते दिलकशी से मुस्कुराया। रूमा ने हंसते हुए ही कप थाम लिया। दोनों की नजरें टकराई थी। कितने दिन बाद खुल के हंसी थी। उसे खुश देखकर मेरान दूसरा कप उठाता, नाक शहादते इंगश्त से रगड़ के मुस्कुराहट दबाता हुआ किचन से बाहर निकल गया। वो दिल को मुट्ठी में कैद रखने वाला बंदा किसी की मोहब्बत में यूं गिरफ्तार हुआ कि दिल मुट्ठी से कब निकला मालूम ही ना हुआ। अगर वो झल्ली थी तो मेरान वो समंदर था जो उसकी तमाम शौकियों को खुद में बींच लेना चाहता था। बेशक उसने मोहब्बत का एतराफ नहीं किया था, या शायद उसे मोहब्बत हो ही ना, पर उसके जज्बात वो समझ गया था। अब उसके इजहार की जरूरत नहीं थी। उस लड़की ने आराम से अपना माजी, अपने एहसासात सब उसे सुना डाले थे। 1.5 माह की मुसाफत के बाद मेरान के मुताबिक मंजिल अब बेहद करीब थी। खिड़की से गिरते धूप सीधी बेड पे गिर रही थी। कई किताबें बेड पे फैली थी और वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए अनोश से बातों में महर थी। मुबारक हो तुमको। फोन की दूसरी पार से अनोश की खुशगवार आवाज सुनाई दी थी। आयशे ने उसे इतना बता दिया था कि मुराद और उसके दरमियान सब ठीक हो गया है। अब बाकी घर वालों की टेंशन मत लेना तुम, आहिस्ता आहिस्ता वो सब भी ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा था ना कि मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। मुंह में गोल गप्पा रखते उसने कहा। आयशे उसकी आवाज पे बदमजा हुई। पहले खा लो फिर बोल लेना। ये बताओ, सर ने जो असाइनमेंट दिया है कब तक जमा करवाना है? 1 हफ्ते का टाइम दिया है, आराम से बना लेंगे। अच्छा तुम वो बात बताओ जो तुम यूनी में बताने लगी थी। उसने फिर गोलगप्पे के पानी में गोलगप्पा डबोया था और मुंह में रखा। आयशे उसके याद दिलाने पे सोच में पड़ गई। मेरी बात को सीरियस लोगी और गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे, उसने उंगली उठा के कहा, जैसे अनोश फोन के पास नहीं सामने बैठी हो। तुम्हारी बात पे डिपेंड करता है। चलो बताओ, कहीं मोहमिल की बात तो नहीं? उसने अचंभे से पूछा। नहीं, उसको तो मैं अब खुद हैंडल कर लूंगी। मैंने एक ख्वाब देखा है। अभी कुछ दिन पहले सवात जब गई वहां वो नाखून चबाने लगी तो अनोश ने आंखें चढ़ाई। आयशा ने सांस फिजा के सुपुर्द की। उसने रुमाइजा और अनोश को बचपन का वाकया नहीं बताया था, ना ही वो इस ख्वाब का अभी इससे जिक्र करने वाली थी। उसका भयानक माजी सिर्फ उसका शोहर जानता था। कभी रूमा और अनोश को कुछ नहीं बताया था। उसे मालूम था अगर वो बता भी देती तो उसकी दोस्तें उसके साथ खड़ी होती, पर वो माजी को उधेड़ना ही नहीं चाहती थी। आयशा ने कुछ देर सोचा। ये दूसरी रात का ख्वाब था जो वो बुरी तरह हवास बाख्ता सी उठी थी। यार मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था, और तुम्हें पता है मेरे ख्वाब
तकरीबन सच्चाई का रूप धार लेते हैं। कोई आस्ताना लगा के बैठ जाओ तुम। यार बता भी दो क्या देखा, और रहने दो, तुम्हारे ख्वाब सच हो जाते हैं। उसकी नकल उतार के अनोश ने कहा। आयशा ने त्यूरी चढ़ाई। हुआ था जो शादी वाली रात देखा था, ऐसा ही था कि वो रोगन मुझे छोड़ दिया है, और देखो क्या हुआ। इत्तेफाक बहन, इत्तेफाक अक्सर हो जाता है, अल्लाह सिग्नल्स दे देता है। अच्छा चलो अपना ख्वाब सुनाओ। यार मुझे लगता है रूमा किसी मुश्किल में है। व्हाट? मैंने उसे एक बंद कमरे में देखा और एक झड़ी में से सफेद रोशनी आ रही थी, और वो रोशनी किसी के चेहरे पे पड़ रही थी। वो जिस कुर्सी पे बैठी थी उसके पीछे कोई खड़ा था, और वो उसने सिटकी निगली। बोलो। अनोश को तजस्सुस हुआ। वो पता है कौन था? मेरान जा। उसने नाखून चबाए। दूसरी बार अनोश का कहका गूंजा। आयशा ने दांत पीस के फोन देखा। यार मैं सीरियस हूँ बहुत। उसके बाद से ये सोच के मेरा दिल भी खराब होता है। रूमा से कोई कांटेक्ट नहीं, हमारा पता नहीं वो कैसी हो। अंकल भी ज्यादा कुछ नहीं बताते। यार आयशा क्या हो गया? वो सिर्फ एक ख्वाब है। हाँ तो ऐसा ख्वाब क्यों आया? चलो आ गया, पर मेरान जा ही क्यों नजर आया? वो एक मशहूर सियासतदान है, हम गरीबों के ख्वाब में इस तरह क्यों आएगा? यार ऐसा हो जाता है। सवात जाने से पहले हमारी मेरान जा से मुलाकात हुई थी ना, वही तुम्हारे जहन में होगी जब ही ऐसा ख्वाब आया। नहीं अनोश, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे शादी से पहले भी ख्वाब ही आया था और वैसा ही हुआ। आयशे, हम जो सोच रहे होते हैं अक्सर वही सब हमें ख्वाब में दिखता है। मैंने तुमको एक लड़की के अगवा होने नावल की कहानी सुनाई थी, तुमने सब इमेजिन कर लिया है और कुछ नहीं। उल्टा सीधा मत सोचो। मैं एहतशाम अंकल से मिलने जाऊंगी, रूमा की खैरियत पूछने, बस। अच्छा। उसका इतना समझाने पे वो खामोश हो गई, पर दिल को तस्कीन नहीं मिली थी। कुछ भी बुरा होने से पहले उसका दिल अजीब वसवसों का शिकार होता था। जिस दिन उसका निकाह था, ख्वाब देखने के बाद वो ज़हनी कशमकश की शिकार थी, पर अनम बेगम ने उसे समझा बुझा दिया था कि थकन की वजह से उल्टे सीधे ख्वाब आ जाते हैं, और अब चंद दिन तक वो अपने मामलात में उलझकर ये ख्वाब भूल गई थी। पर चूंकि मुराद और उसका ताल्लुक मजीद बेहतर हो गया था, उल्टी सीधी सोचें सोचने को ख़त्म हो गई थी, तो रुमाइजा वाला ख्वाब बेवक्त याद आने लगता। अनोश ने फोन रख दिया था। काफी देर के मुराकबे से वो बाहर निकली। रुमाइजा को लेकर फिक्रमंद भी हुई थी। उफ, अल्लाह हम तीनों दोस्तों की हिफाजत फरमा। ख्यालों को झटक के वो वापस गोल गप्पों में लग गई थी। जरपाश ने आयशा को किचन में बुलाया था। अब वो घरदारी सीख रही थी। जरपाश उसे हदायतें कर रही थी और उसका सर मुसलसल इस बात में ही हिल रहा था, कहते हुए, जी आंटी, ओके आंटी, सही सही, मैं समझ गई आंटी। आलू गोश्त के लिए प्याज फ्राई करके उन्होंने पैन एक तरफ रख किया था। आयशा ने सुनहरी भूरी प्याज अलग डिश में निकाली और गरम तेल वाला पैन सिंक में डाल के उसे ठंडा करने के लिए पानी का नल खोल दिया। गरम तेल में पानी गिरने की देर थी, पानी का नाच शुरू हो गया। सब धुआं उड़ाता शोर मचा के उछलकने लगा। आयशा चीख मार के पीछे हटी। जरपाश भी घबरा के उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। सिंक में पड़े पैन को देखा। नल से पानी बहता पैन में गिर रहा था। इर्द गिर्द धुआं जमा हो गया। पैन जब ठंडा हुआ, जरपाश साहिबा ने जाके नल बंद किया। एक नज़र आयशा पे डाली, जो हक्का बक्का डांट सुनने के लिए तैयार खड़ी थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था तेल में पानी गिरने से ऐसा तहलका किचन में मच जाना है। पता तो था गरम तेल में पानी गिरने से क्या होता है, पर इस वक्त बेदहानी में कुछ सोचा ही नहीं। गरम तेल से लथपथ पैन पे पानी नहीं डालते। थोड़ी तो अकल इस्तेमाल कर लेती। सिर्फ वही करो जो मैं कहूँ, वरना क्या से क्या कर दोगे, हद होती है, इतना भी मालूम नहीं। उसे डांटते हुए आखिर में वो बुड़बुड़ाई। आयशा की सीटी गुम हो गई। बाकी फिर वो चुपचाप उनके साथ लगी रही और थक के कमरे में आके औंधे मुंह बेड पे गिर गई। आंटी की डांट दिल पे लगी थी। उसने फौरन अनम को फोन लगाया। चंद बेल्स के बाद कॉल रिसीव हो गई थी। आ गए तुम्हारे ससुर? और कल खाना कैसा बनाया? उनका सवाल सुनते ही उसका मुंह उतर गया और फिर उसने अलिफ से ये तक पूरी कहानी सुना डाली। अम्मी, उन्होंने इतना डांटा है मुझे, बंदा थोड़ा तो लिहाज करता है, मुंह बसोरे वो बताने लगी। अनम ने फोन पे हाथ जमाया। इस पर बुरा लगने वाली कौन सी बात है? पर अम्मी, उसने बात दरमियान में काटी, मैं तुम्हें नहीं डांटती क्या? माँ अगर औलाद को डांट दे तो मसला क्या है? औलाद की इस्लाह ही कर रही होती। तुम इनको सास के अलावा माँ के तौर पे देखो, फिर तुम्हें कोई शिकवा नहीं होगा, वो उसे समझाते हुए बोली। आयशा की तरफ से कोई जवाब ना आने पे मजीद कहा। वो गौर से सुन रही थी। आयशा, मेरी बात सुनो,
अब तुम ब्याह दी गई हो, इस घर को अपना समझो, इन सब की हो जाओ और उनको अपना लो। ऐसे तुम बात बात पे मुझसे शिकायतें करोगी तो तुम्हारा रिश्ता खराब होगा। जिन रिश्तों में बेटियां माओं को दरमियान में लाती हैं और माएँ अगर समझदारी का मुजाहिरा नहीं करती तो रिश्ते बिगड़ते हैं। हमने तुम पे अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए, पर अब असली घर तुम्हारा वो है। तुमको जैसे मेरी डांट सुनने की आदत है, मेरे डांटने का बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे हक हासिल है, ऐसे ही वो भी डांट दें तो मुंह मत फैलाओ। सिर्फ अगला ही रिश्तों के इस्तेहकाम के लिए नहीं बदल सकता, हमें खुद को भी बदलना पड़ता है। आयशा गौर से उनकी नसीहतें सुन रही थी। जब वो खामोश हुई तो मुस्कुरा दी। थैंक यू अम्मी, उसने इतना ही कहा। अन्नम मुस्कुरा दी। उनकी बेटी समझदार हो गई थी, फौरन ही समझ गई। बेटा, घर बसाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। शादी के शुरू के साल थोड़े मुश्किल होते हैं, पर अगर लड़कियां ससुराल में घुल मिल जाएं तो बाकी जिंदगी आसानी से कट जाती है। समझ गई अम्मी, मैं सब, और मुझे ये सब पता था, मैंने तुम्हें बस आपको ऐसे ही बता दिया। उसने सर खुजाया। अनम बेगम हंस दी। अच्छा चलो, मैं फोन रखती हूँ, पड़ोस में जाना है, अनीसा की बेटी की आज मंगनी है। तुम्हें भी वो याद कर रही थी। वो गोद में कपड़े फैलाए ही बैठी थी। ओ, मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कॉल मुनक़ता कर दी और आराम से बेड पे सीधे बैठ के मोबाइल में लग गई। जरपाश फारिग होकर कमरे में दाखिल हुई। अरबाज दमीर खबरें सुन रहे थे। जरपाश ने आते ही आयशा के मुतल्लक बोलना शुरू कर दिया था। अरबाज साहिब लब दबाए बीवी की सुनते रहे, फिर साइड दराज से अपना चश्मा उठा के नाक पे बैठाया। बच्ची है, सीख जाएगी, आप इतना गुस्सा मत करें, अरबाज ने तसल्ली दी। जरपाश साहिबा बेड पे बैठ गई थी। पीठ मोड़ के उन्हें देखा। गुस्सा नहीं, बस जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने तस्दीक करते कहा। आप इतनी सख्त सास बनेगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या आपने देखा नहीं कि वो आपसे डरती, आपके कुछ कहने पे घबरा जाती है? ऐसा वो हमारे साथ तो नहीं करती। उन्होंने स्क्रीन से नजरें फेर के उनके चेहरे पे मरकूज कर ली। जामनी कॉटन के सादे से जोड़े में मलबूस थी। भूरे लाल मिक्स बाल थे जो कैचर में मुकीद किए हुए थे। बिला वजह डरती है, मैंने उसे कुछ कहा ही कहाँ है। खैर जो भी हो, मैं चाहता हूँ आयशा को वही इज्जत मिले जो मुराद की बीवी होने की हैसियत से वो डिजर्व करती है। उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और आपका कल भी उसके काफी रूखा सूखा रवैया था और सज्जल ने तो हद कर दी। ये लड़की मुझे मिले तो मैं इससे बात करूं। कल मोहिब मौजूद था, उसने भी नोट की होगी ये बात। वो जरा आगे को हुए। जरपाश ने लब हिला के सामने देखा, फिर उठ के बेड ग्राउंड के साथ लग बैठी। आप परेशान मत हो। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, आयशा के वालिद और वालिदा को डिनर पे बुला लें, मुलाकात हो जाएगी ताकि सब जान लें आयशा ही इस घर की बहू है। उनकी आखिरी इशारे पे जरपाश ने घूर के अरबाज को देखा। मैं मोहम्मिल को लेकर परेशान थी, मेरी उसे ही बहू बनाने की ख्वाहिश थी। मैंने ही उसके दिल में मुराद का नाम डाला और फिर जब आयशा आई तो मुझे बुरा लगा। उसने जैसे मेरी भांजी का हक मार लिया हो। गलती मेरी भी है। मुराद की मर्जी के बगैर मोहम्मिल को उसके ख्वाब ना दिखाती, क्या करती? अकल पे मोहब्बत का पर्दा डाला था। इकलौती भांजी बिन माँ की बच्ची है, ये सब ठीक है, पर आयशा को उसका हक दिया जाए। अरबाज साहिब, आपने तो मुझे हिटलर ही समझ लिया है। मुझे उससे कोई मसला नहीं है। चलें, ये तो अच्छी बात है। आपने देखा है वो सब को खास कर आपका दिल जीतने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। मुस्कुराकर उन्होंने टीवी चैनल तब्दील किया। हाँ, ये तो है। कल जो उसने अपनी छोटी सी काविश की मुझे पसंद आई और फिर अभी भी मेरे साथ लगी रही। जल्द ही सब सीख जाएगी और आयशा की फैमिली को मुराद की फरागत के दिन के हिसाब से डिनर पे बुला लेंगे। वो चेहरा साइड टेबल की तरफ किए हुए थी। अरबाज उनकी आंखों में देख न सके। उनके कहने पे तबस्सुम होंठों पे जमा हो गई।